I would say that the support from world leaders has been pretty deafening with its silence in the main. Do you wish you'd had more vocal support from maybe the British Prime Minister Rishi Sunak, the American President Joe Biden? Would that be helpful? Look, Piers, in my 3.5 years as Prime Minister, I discovered one thing, that this morality and the so-called Western values about democracy, constitutionalism, rule of law, fundamental rights against custodial torture, all that is happening in Pakistan today. Yet, I think the interests of the powers, Britain, the US, I think they are more aligned with our military for whatever reasons, maybe because they're supporting them in Ukraine. I always wanted an independent foreign policy because 80,000 Pakistanis died when we joined the US war on terror, and I was against it. So I think maybe that they feel that their interests are more served by the current regime. And whenever that happens, all these professed values go out of the window. My message is simple. Firstly, countries only sort their problems out from within. But the professed values of United States and United Kingdom, I repeat, is democracy, is fundamental rights, rule of law. I mean, whenever they criticize Hong Kong or China with the Uyghurs or Russia, they always talk about the lack of human rights and fundamental rights and lack of democracy. But here's one standing for democracy, and all these values are being violated, yet not a word from them. But I didn't really expect much, because what is happening right now is we are basically fighting for rule of law and democracy. On the other hand, we now have we are heading towards the worst type of dictatorship. It's a banana republic right now, where the judges now are no longer independent. They are threatened. Media is completely muzzled. My name is not allowed to be mentioned on the media. And you can't demolish the biggest political party by the steps they've taken, these draconian steps. So therefore, what is at threat is our democracy, our future. So there's no, it is a... जी तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे हम वतनों, आपने ये क्लिप सुना। आज जो वो लोग जिनके मुंह से ये बातें सुनने को मिल रही थी कि कप्तान जो है वो अमेरिकन पॉलिसी का सबसे बड़ा जो है वो नाकिद रहा है, अमेरिकन रिजीम चेंज जब हुआ तो उसने सरे राह जो है सरे आम खत लहरा दिया और उसने अमेरिका को जो है जिम्मेदार ठहराया था इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जब बरतानवी इदारे के एक सहाफ़ी ने उससे इंटरव्यू में पूछा कि आपको पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान को जो है वो जो बाइडन की हिमायत चाहिए, तो कप्तान ने क्या जवाब में कहा? उसने जवाब में ये कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है आज तक तारीख में कभी ऐसी नहीं हुई। लेकिन क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और बरतानिया जो है वो सबसे बड़ा जो है वो डेमोक्रेसी है जो कि ह्यूमन राइट्स को बहुत कीनली वॉच करते हैं, लेकिन अब तक जो है जिस तरह से जो है खामोशी इख्तियार की गई है, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की गई है, वो भी काबिल गौर है। और दूसरी चीज़ ये, लीडर हमेशा लीडर होता है। जब उनसे पूछा गया कि आपको हिमायत चाहिए तो उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे पहले जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने ये तमाम मामला जो है पाकिस्तान के अंदर ही हल करने चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे अगर कोई इनसे हिमायत चाहिए तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह की वायलेशन यहाँ पर हो चुकी है, जिस तरह का यहाँ पे बर्बरियत दिखाई जा चुकी है, एट्रॉसिटीज़ जो है वो दिखाई जा चुकी हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ, तो अब तक तो जो है बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, बहुत कुछ बोला जाना चाहिए था, लेकिन मुसलसल खामोशी है। और मैं आगे भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैं नहीं समझ रहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आगे जाकर भी जो है इनके ऊपर बरमला कोई इजहार करेगी, क्योंकि शायद इस रिजीम चेंज से जो है कहीं ना कहीं अमेरिकन मिलिट्री को और बरतानिया को भी जो है कुछ ना कुछ जो है वो हासिल हसूल हो रहा है। और वो क्या है कि शायद हमारी मिलिट्री जो है यूक्रेन की जंग में भरपूर उनके साथ जो है वो कदम मिलाकर खड़ी हुई है। तो जनाब, ये होता है लीडर और ये होता है जन्नाटेदार थप्पड़ जो आज उन्होंने अपने मुखालिफिन के चेहरे पर मार दिया है और उन्होंने साबित कर दिया है कि सुप्रीम पावर सिर्फ कौन है? अल्लाह। और वो किस वक्त इसलिए अल्लाह को पुकारता है, वो उससे मदद मांगता है क्योंकि उसका कामिल यकीन है, वो अल्लाह पर तवक्कल करता है। वो जानता है कि अगर जो सांस है वो है और जो रात कब्र में है वो कब्र में गुजारने से कोई नहीं रोक सकता। और उसका ये ईमान जो है लोगों को बेहद पसंद है, उसकी जो एक ब्लंटनेस है वो लोगों को पसंद है, उसकी जो एक दलेरी है वो पाकिस्तान के लोगों को बहुत पसंद है।
है, और जब वो कहता है कि मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा तो लोग जो है उसके ऊपर लब्बैक कहते हैं, और जब वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने लोगों का पहले सोचूंगा तो लोग जो है उसकी बात पर लब्बैक कहते हैं। और यही इस चीज़ की आज अक्कासी करता है कि आज भी ये 14 हुकूमत, जी हाँ एक और हुकूमत का इजाफा हो गया, अभी भी ये 14 की 14 हुकूमत जो है इलेक्शन करवाने के बारे में नहीं सोच रहे। ये इमरान खान के बयानिए की जीत है, ये इमरान खान के एक नज़रिए की जीत है, ये इमरान खान के एक नारे की जीत है। इमरान खान जो है वो एक फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है, वो एक नज़रिए का नाम है। और ये चीज़ें जो हैं उन सब ताकतवरों को बहुत सोचनी होंगी जो कि इमरान खान को कुचलने का जो है वो सोच रहे हैं, क्योंकि एक इमरान खान को तो आप कुचल देंगे, लेकिन इमरान खान ने जिस नज़रिए को परवान चढ़ा दिया, जिस सोच को परवान चढ़ा दिया है, उसको अब आप कभी भी नहीं कुचल सकते। बहुत शुक्रिया।